ठीक है, algebraic manipulation is alhamdulillah over. This is our third topic. The name of this topic is solution of equations and inequalities. ठीक है, you have to make a title page. Just leave one page. Title page बाद में बना लेंगे. This is the decoration of the title page. This is basically a concept map. ये हमें बताएगा कि what we will study in this chapter, what are the terminologies, what are the trick terms and what are their definitions. ये थोड़ा सा आपका introduction page हो गया. We will be discussing this page. I will explain this page to you. You can have your pointers, you can note down everything, and then I will give you some time to copy this and for your queries as well. Then we will move on to the questions. The name of the topic is solution of equations and inequalities. Okay, we are starting with the word equations. The word equations, I have defined the word equation as an expression that has an equal to sign. The equal to sign looks like this. ऐसा expression जिसमें equals to sign अगर आपको नजर आ जाए तो वो फिर equation कहलाता है. वो क्या कहलाता है? Equation कहलाता है. In this chapter, we will be dealing with equations and inequalities. What are inequalities? We will discuss it in the later classes. Right now, we are focusing on the solution of equations. What are equations? Equations are basically expressions that has an equal to sign in it. जब expression में equals to का sign आ जाए तो वो equation बन जाती है. ठीक है, अच्छा. Types of equations, we will be discussing two types of equations in this chapter. The first one is called the linear equation and the second one is called the quadratic equation. You must have heard these words before. Equation is an expression that has an equal to sign in it. We will be dealing with two types of equations. There are a number of equations, but we will be discussing only two types of equations in this chapter. The first one is the linear equation and the second one is the quadratic equation. QUADRATIC, quadratic equation. Now the next question is, sir, what is linear equation? What do you mean by linear equation? Equation means an expression that has an equals to sign. What does linear means? Linear means one. Linear means one. And what does one means? A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is 1. There must be a variable in an equation. We will be dealing with some equations that has variables, and the highest power on that variable, if it is 1, then that equation will be called as linear equation. दोबारा repeat करता हूँ. Expression जिसमें equals to का sign आ जाए, that is called an equation. We will be doing two types of equation. First one is the linear equation and the second one is the quadratic equation. What is a linear equation? Equation that has a highest power of 1 on the variable is called a linear equation. Some examples of linear equation: x minus 5 equals to 8. x minus 5 equals to 8. You know how to solve this. आपको इसको solve करना आता है. आप क्या करोगे? इस minus 5 को shift कर दोगे और जो है वो 8 plus 5 जो है मेरे पास 13 हो जाएगा. You will get the value of x. ठीक है, तो इस equation में there is only one variable. ठीक है, there is only one variable in this equation. Since there is an equals to sign, इसका मतलब this is an equation and there is only one variable in this equation. And what is the highest power of the variable? What is the highest power? आपके पास सबसे ज्यादा variable पे power क्या है? 1. So this is called a linear equation. एक और एग्जांपल देखते हैं. 2x plus 4y equals to 9. Equals to sign है, इसका मतलब this is an equation. How many variables are there? Sir, there are two variables in this equation. One is x and one is y. In the previous equation, there was only one variable. In this equation, there are two variables. One is x, one is y. What is the highest power of the variable? Highest power of the variable is again 1. x पे power भी 1 है और y पे power भी 1 है. इससे ज्यादा कोई और power नजर नहीं आ रही. This means it is a linear equation. एक और एग्जांपल देखते हैं. y is equals to 6x minus 9. Again, equals to sign. This is an equation.
How many variables are there? There are two variables. What is the highest power of the variable? Y पे भी 1, x पे भी 1. So this is again a linear equation. The first one is the linear equation in one variable. The second and third one are the linear equations in two variable. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर दूं जल्दी से एक बार. An expression that has an equals to sign is called an equation. We will be dealing with two types of equation. The first one is linear equation. The second one is a quadratic equation. What is a linear equation? An equation that has a variable and the highest power of the variable is 1. It doesn't matter how many variables are there. There can be one variable, there can be two variables, it doesn't matter. But the highest power on the variable should be 1. That is called a linear equation. Since the highest power on the variable is 1, you will be getting one answer of each variable. You will be getting one value of each variable. For example, in this case, there will be only one answer of x. In this case, x का भी एक आंसर होगा, y का भी एक आंसर होगा. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और. The name of the topic is solution of equations. ठीक है. इक्वेशंस तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गई है कि इक्वेशंस होती क्या है, बट व्हाट अबाउट दिस वर्ड सॉल्यूशन? व्हाट इज दिस वर्ड सॉल्यूशन? तो मैंने सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है कि सॉल्व मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. हमें पता होना चाहिए हमें चैप्टर में करना क्या है, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? Solve means we have to find the value of the variable. हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे? उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम बाद में देखना शुरू करेंगे बारी बारी के. लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं. तो अभी चैप्टर का सिर्फ नाम समझना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. सॉल्यूशन मींस सॉल्व. सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इक्वेशन मींस एन एक्सप्रेशन दैट हैज एन इक्वल्स टू साइन. चीजें क्या क्या याद रखनी है? We will be dealing with two types of equations. The first one is linear equation. The second one is quadratic equation. What is a linear equation? An equation in which the highest power of the variable is 1. What are the examples? Some examples are x minus 5 equals to 8. Again, this is a linear equation in one variable. Why? Because the highest power on the variable is 1. Next example, 2x plus 4y equals to 9. Again, this is an equation. This is a linear equation. Yes. Why? Because the highest power on the variable is 1. How many variables are there? There are two variables. Since the power is 1 on the variable, you will be getting only one answer. ठीक है. जितने variables होंगे सबके एक एक आंसर आएंगे. ये थोड़ा सा लास्ट पॉइंट देख लो कि since we have linear equations in different form, so the first form is called the slope intercept form, which is y is equals to mx plus b. लीनियर इक्वेशन को लिखने की हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. वी कैन अरेंज देम इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. द स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है? y is equals to mx plus b. ये m क्या है, y x क्या है, b क्या है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. अभी से भी ये समझ लो कि लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y is equals to mx plus b है. सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि y minus 1 is equals to mx minus 1 है. द थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द नंबर इज ऑन द अदर साइड. ax plus by plus c. ये तीन फॉर्म्स हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको लीनियर फॉर्म को अरेंज करना पड़ेगा, वो अभी नहीं करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये फॉर्म्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज. इनको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू राइट अ लीनियर इक्वेशन. हम लीनियर इक्वेशन को कितनी तरीकों से लिख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y is equals to mx plus b में लिखी जाती है. The second form is the slope form, point slope form, that is y minus y1 mx minus x1. The third form is the standard form ax plus by is equals to c. अब मुझे जल्दी से कौन बताएगा कि ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? इज इट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज इट द पॉइंट स्लोप फॉर्म या इज इट द स्टैंडर्ड फॉर्म? Standard form. Standard form. It is the standard form. Standard form क्या होती है?
all the variables on one side and the number on the other side. What about this form? ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y एक साइड पे होता है, बाकी एवरीथिंग इज ऑन द अदर साइड। तो ऐसा ही लिखा हुआ है y इज ऑन वन साइड एंड ऑल द थिंग इज ऑन द अदर साइड। तो ये लीनियर इक्वेशन को लिखने के कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द सेकंड वन इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, द थर्ड वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन का एक ही आंसर होता है, एक वेरिएबल का एक ही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। सर एक आंसर कैसे होता है? मतलब एक आंसर देखो, मुझे ये बताओ कि x minus 5 equals to 8 है ना। if I have to find the value of x, what will I do? I will shift this minus 5 on the other side, ऐसे ही करूंगा ना। यस। तो ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5। एंड x इज इक्वल टू 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13। तो x का आंसर कितना आ गया? 13। इसका मतलब एक ही आंसर आया ना x का। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक में अभी बताऊंगा क्या होता है। सर ठीक है, बोलो सर, ये जो तीन फॉर्म्स हैं इनका बता देगा कि कौन से स्लोप इंटरसेप्ट और वो सब। ठीक है। In order to write a linear equation, we have three different forms. Linear equations हमें three different forms में मिलती हैं। ज्यादातर वो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देता है और स्टैंडर्ड फॉर्म देता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो हमारे पास ज्यादातर नहीं आती। ठीक है, समटाइम्स आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जो कि यहाँ लिखी हुई है 2x + 4y = 9। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को एक से ज्यादा फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो समटाइम्स वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ देगा, समटाइम्स वो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ देगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की वो क्या निशानी? y शुड बी अलोन ऑन वन साइड। y एक साइड पे अलोन होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समटाइम्स योर क्वेश्चन विल बी इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, समटाइम्स योर क्वेश्चन विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, बस इसकी इतनी सी बात याद रखिए। The quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is 2. You will see a square. आप हमेशा quadratic equation में square देखोगे, not more than that. The highest power on the variable should be 2, not more than 2. 2 होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं quadratic equation. Examples सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया तो क्यूब नहीं दिखेगा हमें? नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर। सिर्फ 2 नजर आएगा आपको बस। 2 के अलावा 2 से बड़ी कोई पावर नजर नहीं आएगी। जब भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा इस तरह वेरिएबल नजर आएंगे x और y, बस। कभी स्क्वायर नजर नहीं आएगा। अगर आपको स्क्वायर नजर आ गया इसका मतलब दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन: 7x² = 63 since there is one variable that is x and what is the power on x? Square. स्क्वायर के अलावा स्क्वायर से बड़ी कोई पावर हमें नजर नहीं आ रही। दिस मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगेन अनदर एग्जांपल 3x² - 5x + 2 = 0। दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है। 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है। देयर इज अ पावर 2, देयर इज अ पावर 1 और ठीक है, और 2 से कोई बड़ी पावर नहीं है, इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Another example, 4x² = 4x - 1. Again, the highest power on the variable is 2. 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब this is again a quadratic equation. x² + 5 + 2x = 0. Again, the highest power on the variable is 2. 2 से बड़ी कोई पावर नजर नहीं आ रही, इसका मतलब this is again a quadratic equation. What is the standard form of writing a quadratic equation? The standard form of writing a quadratic equation is y is equals to ax² + bx + c. हमें ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में दिखी, ये जो लिखी हुई है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगी एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि पूरे चैप्टर में वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस। या फिर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहिए कि इक्वेशन जो आपको गिवन है वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन में हमेशा वन आंसर होगा, एक वेरिएबल का एक ही आंसर होगा, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस द पावर इज 2 देयर विल बी 2 आंसर्स फॉर ईच वेरिएबल। इन तीनों एग्जांपल्स में वी ओनली हैव वन वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स। तो इसका मतलब है हर इक्वेशन में एक्स के दो आंसर्स होंगे बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे, विल मूव ऑन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका ना, और वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल, और भी तरीके हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वर्टेक्स फॉर्म वगैरह भी होती है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो इंशाल्लाह हम लोग को नहीं मिलेगी, वो एड मैथ्स में पढ़ी जाती है। तो अभी सिंपल मैथ्स में भी ओनली हैव टू डील विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके सर। चलो वन लास्ट थिंग, आखिरी चीज देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस, ठीक है, इस बात पे तो सब एग्री करते हैं ना कि वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस इन दिस चैप्टर, एंड वी हैव टू सॉल्व टू टाइप ऑफ इक्वेशंस। द फर्स्ट वन इज द लीनियर इक्वेशन, द सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ कैन वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो उसके लिए वी विल टेक हेल्प फ्रॉम क्लास 8। हमने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है। कौन कौन से मेथड से जिनसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था? वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया था, वी सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, एंड वी सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सारे मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड दीस मेथड्स इन क्लास 8, ऐसे ही है? Yes. So what are the methods to solve a linear equation? Graphical method, in which we make graphs, we see the intersection point and we write our answers, ये भी हमने किया था। We solve it by elimination method, we have to eliminate one variable to find the value of the next variable, and we also use a substitution method in which we find the value of one variable and substitute it in the next equation to find the value of the other variable। ये तीनों मेथड्स जो हमने किए हुए हैं, ठीक है। नाइन्थ में ज्यादा फोकस जो है ना वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में होगा। ऑल्दो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन दिस क्लास इंशाल्लाह, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को सॉल्व कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी फोकस है दैट विल बी ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यू हैव डन दिस ग्राफिकल मेथड, यू हैव डन दिस एलिमिनेशन मेथड, यू हैव डन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक क्वेश्चन एलिमिनेशन का आज मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए कि व्हाट वाज अ लीनियर इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते थे, क्योंकि इट्स अप टू यू, ठीक है। पेपर में कभी भी ऐसे नहीं आता कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और यू हैव टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन। देयर इज अ चॉइस इन द पेपर। ग्राफिकल मेथड वो कभी भी नहीं पूछते, ठीक है, वो आपसे हमेशा चॉइस पूछेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। तो एलिमिनेशन इज एन इजी मेथड, सो वी विल बी सॉल्विंग इट विद द एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन उसका डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ा सा वो मेथड रिफ्रेश हो जाए। मूविंग ऑन टू द मेथड्स। copy these? हाँ, बस अभी कॉपी कर लो, मैं ये समझा दूं एक चीज और, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना। Methods for the linear equations are graphical, elimination and substitution. Methods to solve a quadratic equation are factorization, completing square and quadratic formula. So our primary focus will be on these three methods, how to solve a quadratic equation. What are the three methods? The first one is factorization, the second one is completing square, the third one is quadratic formula. स्टार्टिंग मैंने कहां से किया था? एक एक पॉइंट बताते रहो सब जल्दी जल्दी। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? Solution of equations and inequalities. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशंस? Equations are an expression that has an equals to sign. That has an equals to sign. And what do you mean by solution? What do you mean by solve? To find the value of the variable. To find the value of the variable. Very good. How many equations we will discuss in this chapter? Linear equation and quadratic equation. Very good. What is a linear equation? An equation which has one highest variable. One highest or power? One
1 as the highest power. 1 as the highest power of the variable. ऐसी equation जिसमें variable पे highest power 1 हो, that is called a linear equation. And how many answers do we get or in linear equation? If there is only one variable, तो उसके कितने answers होंगे? 1. 1. Only one answer. And what are the forms? Name some forms in which we can write linear equation. 3. What are those? Slope, intercept, Standard. point, slope, and standard. Zabardast. What is the quadratic equation? It has the highest power of 2. The highest power on the variable should be 2, not more than that. And since the highest power is 2, so how many answers will we get? 2. Zabardast. Very good. What is the standard form of writing a quadratic equation? Y is equals to ax squared plus bx plus c. Very good. What are the methods of solving a linear equation? Name some methods to solve a linear equation. Graphical. Graphical. Graphical, Elimination. elimination. Substitution. Very good. What are the methods to solve a quadratic equation? Factorization. Factorization. Next method is completing square. And Quadratic the third formula. method is the quadratic formula method. Factorization, very easy. Quadratic formula method, very easy. Completing square थोड़ा सा difficult होता है, उसमें थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ता है. फैक्टराइजेशन मेथड तो तुम लोग को आता है. जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना सॉल्व करना, तुम लोग खुद बोलोगे ये तो हमने किया वैसा लास्ट टाइम. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द न्यू मेथड. उसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई द वैल्यूज. कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट है. चलो, इफ यू आर डन विद कॉपीइंग इट, shall we move on to the first question? Sir, just 2 minutes. I'm just copying the methods or methods to solve. ठीक है. I'm giving you 2 minutes, then I will go to the next slide. Sir, is this the second chapter till now? Yes, this is the second chapter. The first was algebraic manipulation, and this is the second chapter, solution of equations and inequality. Sir, this is slope, intercept, and point, slope, and standard are the forms to form linear solve the linear equation. No, to write a linear equation. Slope, intercept form, point slope, and standard are the forms in which we can write a linear equation. For example, this is an example, 2x plus 4y equals to 9. This is a linear equation and this has been written in the standard form. This is again a linear equation, y is equals to 6x minus 9, but it is arranged in a different form. And what is that form? That form is slope intercept form. So these are the methods in which we can write a linear equation. Okay, sir. Sir, can you tell what is completing square? Completing square is very much similar to the identities. वो जो identities है ना first और second, completing square उस तरह का है थोड़ा. उसमें हमें square complete करना पड़ता है, हमें identity बनानी पड़ती है. जब वो start करेंगे तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह identities थोड़ी सी revise कराऊंगा. Then we will move on to the completing square. तो completing square ये मतलब, इसका मतलब ये समझ लो, in completing square we have to form an identity. Positive वाली identity भी बन सकती है, negative वाली भी. Only first two. So now we are moving on with the first question, and the first question is we have to solve a simultaneous linear equation. What do you mean by word simultaneous? Simultaneous means two at a time. So we have been provided with two equations. अब मुझे ये कौन बताएगा कि what is equation number 1? Equation number 1 क्या है? Is it linear or quadratic? Linear. Linear. And what about equation number 2? Linear. Linear. And what is the form in which these equations are arranged? Form कौन सी है? I think standard. Standard form. Very good. Because all the variables are on one side and the number is on the other side. So this is the standard form. ठीक है? Both the equations are linear and both the equations are arranged in standard form. It doesn't matter in which form they are arranged. The question is we have to solve them. We have to solve them means
सॉल्व का क्या मतलब था? वी हैव टू Find the answer of each variable. find the answer of each variable. And how many variables are there? 2. There are 2 variables, so we have to find the value of x as well, and we have to find the value of y as well. So this is our task. And what do you mean by simultaneous? Simultaneous means 2 equations at a time. ठीक है? और इसके पीछे वो क्या है कि सर हमें 2 इक्वेशंस क्यों गिवन है, एक इक्वेशन क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर ये है कि इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, you need 2 equations. You cannot find the value of 2 variables with 1 equation. That is the important point. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि हमें 2 इक्वेशंस क्यों दी हैं, एक इक्वेशन क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर ये है कि if you want to find out the answers of 2 variables, you must need at least 2 equations. You cannot find the value of 2 variables by using 1 equation. उसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है. So if you have to find the value of 2 variables, yes, we can find out. But हमें क्या चाहिए? 2 equations चाहिए कम से कम. 2 equations से कम we cannot solve it. What are the methods mentioned in the question? Elimination method or the substitution method? Which method will you prefer? अगर मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि अगर ये question तुम लोग के सामने आता तो कौन से method से solve करते? Sir, elimination. Why? Sir, because it is easier to solve this equation with a method. ठीक है, elimination method is easier to solve और उसकी एक ट्रिक भी है. मैं सब्स्टिट्यूशन उस वक्त यूज करता हूं when I have 1 as a coefficient of any variable. अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में मुझे 1 कोफिशिएंट मिल जाता, अभी x का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1? 4. 4. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1? 3. -3. And what is the equation of इसमें क्या कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 में x का? 6. And what is the coefficient of y? Plus 5. +5. सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस वक्त यूज करता जब इसमें से किसी एक का कोफिशिएंट 1 होता, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू सॉल्व इट विद द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्जेक्ट बनाने में आसानी होती. व्हेनेवर देयर इज अ कोफिशिएंट अदर देन 1, तो फिर इट इज बेटर टू यूज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मिस्टेक का चांस होता है. तो एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इजी, इट कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी सिचुएशन. लेकिन सब्स्टिट्यूशन में उस वक्त यूज कर लेता इफ आई हैव 1, अगर इनमें से किसी का कोफिशिएंट भी 1 होता ना, तो मैं यूज कर लेता सब्स्टिट्यूशन. सो नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन Even to make the equation number 3, it would be easier to use elimination. अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 किस में बनती है? इक्वेशन नंबर 3 sir, किस में बनती है? सर, जब हम इनको लाइक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. हाँ, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना जिसमें इक्वेशन नंबर 3 बनती है. तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर इनमें से किसी का भी कोफिशिएंट 1 होता ना, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता, मतलब इक्वेशन नंबर 3 बनाता. ठीक है, लेकिन सिंस देयर इज नो 1, सारे कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, तो आई विल बी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मींस एलिमिनेट द वेरिएबल. यू हैव टू एलिमिनेट 1 वेरिएबल in order to find the value of the next variable. Elimination का मतलब क्या होता है? You have to eliminate 1 variable to find the value of the next variable. ठीक है, तो this is our equation number 1 and this is our equation number 2. चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी एक वेरिएबल अपनी मर्जी से पिक कर लो, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है? सर, x. अच्छा, we will be starting with x. हमने x को पिक कर लिया. ठीक है, Okay. Sir, first we are going to make the same, like we are going to make the coefficient same. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू पिक 1 वेरिएबल. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने x पिक कर दिया. अब in order to eliminate x, both the coefficient should be same. Elimination उसी वक्त होगी जब कोफिशिएंट सेम होंगे. लेकिन the problem we is are going that to multiply like 4 with 6 and 6 with 4, which would be 24. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है. मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि कोई अगर नहीं आता किसी को तो थोड़ा सा उसको भी समझ में आ जाए. ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू पिक 1 वेरिएबल. आपने x पिक किया, यू कैन आल्सो पिक y, आप y भी पिक कर सकते थे, लेकिन हमने x पिक कर लिया. द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. व्हाई? बिकॉज द कोफिशिएंट आर डिफरेंट, और जब कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो फॉर दैट हमारे पास ट्रिक क्या है?
हमारे पास ट्रिक ये है कि वी विल स्वैप द कोफिशिएंट्स। इसका जो कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 4. This is the trick of making the coefficient same. And what is the coefficient of x in the second equation? 6. I will multiply this equation by 6. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू सेलेक्ट वन कोफिशिएंट जिसको एलिमिनेट करना है. देन यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. हाउ? बाय स्वैपिंग द कोफिशिएंट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज 6, you will multiply equation number 1 by 6. आप इस पूरी equation को 6 से multiply करोगे. And the coefficient of x is 4 in equation 1, so you will multiply 4 with equation number 2. पूरी complete. चलो Sir, जल्दी it से will be multiply करते हैं. 24x ठीक है, equation number 1 क्या हो जाएगी? This will be 24x minus minus 18y 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 equals to what is 25 14. multiplied by 6? 140 25 multiplied by 6. एक बार दोबारा देखो. It's 150. 150 sir. I think it will be 150. Yes. ठीक है. This is our new equation. When I will multiply 6 with 4x, it will give me 24x. I will multiply 6 with minus 3y. It will give me minus 18y equals to, I will multiply 6 with 25 to get 150. This is my equation number 1. ये नई वाली equation number 1 है. ठीक है. Yes. And इसी the तरह second equation is 24x again the second equation will be, when I will multiply 4 with 6, so this will be 24x plus plus 20y 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 equals to 4 times 9 is 36. 36. So this is my second equation. Okay. मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? बिकॉज आई हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. क्या कोफिशिएंट सेम होगा x के? नाउ द Yes, sir. कोफिशिएंट्स आर सेम. So now we are going to eliminate 24. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? यू हैव टू पिक वन वेरिएबल, जो कि आपने पिक कर लिया x. सेकंड स्टेप, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम, वो भी आपने कर लिया. थर्ड स्टेप, यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस. यस To सर, हम eliminate. इसको ऐसे नहीं कर सकते, इनकी साइंस दोनों की सेम है. बिल्कुल बिल्कुल. ये सेकंड स्टेप हो गया. ठीक है. अब थर्ड स्टेप में मुझे डिसाइड करना होता है कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x, इक्वेशंस को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं. उसके लिए Sir, मैं ट्रिक add. बताता हूं क्या ट्रिक है. Add. ठीक है. चलो, एक कह रहा है ऐड. ऐड में अगर मैं ऐड करूंगा तो 24 प्लस 24 तो 48 हो जाएगा. Sir, you have to subtract. सर हम वी हैव इसको टू सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इट. करेंगे. ठीक है, ये चीज याद रखना. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक बार. And First, sir, if we are like, for example, if we are choosing y, so then we have to make their signs equal. Like we have to then turn 20 to minus. we have to नहीं, अगर आप y को सेलेक्ट करते हैं and if the signs are opposite then you have to add. मैं इसको अभी लिखवा देता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ. ठीक है, मैं तो पहले स्टेप 1 रिपीट कर रहा हूँ दोबारा. The first step is you have to pick one variable. The second step is you have to make the coefficient same by swapping the coefficients. And the third step is you have to select, add और subtract. ठीक है. और अब मैं तुम्हें एक ट्रिक टर्म लिखा रहा हूँ, वो लिख लो. ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? ऐड उसको करते हैं, so we add. If the sign is same, for example both are positive or both are negative, then we subtract. In this case both the sign are positive, means both the sign are same, so we will subtract them. कैसे subtract करेंगे इनको? सर लेकिन पता कैसे चलता है कि साइन डिफरेंट है या किसी एक को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन को. देखो डिफरेंट माइनस से. मेथड, डिफरेंट माइनस मेथड, से. बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स हैं. वो मैं बता देता हूँ अभी. देखो साइन का कैसे पता चलता है? टर्म से पहले हमेशा टर्म का साइन होता है. मुझे ये बताओ 24x का साइन क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव. और जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें 24x का साइन क्या है? पॉजिटिव. लेकिन ये इक्वेशन में नहीं था ना इटसेल्फ, अभी आपने डाला है वहां पर. ठीक है, अगर साइन नहीं होता इसका मतलब पॉजिटिव है. अगर साइन होता तो नेगेटिव लिखा हुआ होता है. अगर इफ देयर इज नो साइन, फॉर एग्जांपल यहाँ इधर आ जाओ, इधर देखते हैं. ये 4x का साइन क्या है?
पॉजिटिव। पॉजिटिव, हम पॉजिटिव साइन नहीं लिखते, ठीक है, हम स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइन नहीं लिखते। अगर नेगेटिव होता तो डेफिनेटली यहाँ माइनस लिखा हुआ होता, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब द साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बोथ द साइन आर सेम, सो आई विल सब्ट्रैक्ट देम। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 लिखो, you will write equation number 1, 24x minus 18y, and then you will subtract it जैसे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट हैंड साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन को हमेशा इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐड भी ऐसी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी ऐसी करते हैं। एंड देन इक्वल्स टू 150 minus 36, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशंस। ऐड भी ऐसी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी ऐसी करेंगे। राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अब जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 24x, दिस विल बी minus 18y, and then this negative sign means minus multiply by 24x, so this will be minus 24x, and then this minus will be multiplied with positive 20y, so this will again be minus 20y. And what is the answer of 150 minus 36? 150 minus 36 will give me 114. सर साइंस तो डिफरेंट है, तो हम ऐड नहीं करेंगे? तो साइन डिफरेंट है तो क्या पूछ रहे हो? ऐड करेंगे, आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। साइन सेम है ना, यहाँ दोनों के साइन पॉजिटिव है ना, डिफरेंट थोड़ी है साइन। टॉकिंग अबाउट इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो जरा, मेरे साथ आओ, ऊपर आओ। इक्वेशन नंबर 1 देखो। इक्वेशन नंबर 1 में 24x का साइन क्या है? प्लस। एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 में 24x का साइन क्या है? प्लस। इसका मतलब दोनों के साइन क्या है? सेम है क्या ऑपोजिट है? सेम है सर। सेम है, तो सेम है तो हम क्या करते हैं, जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर एक का साइन पॉजिटिव होता और एक का साइन नेगेटिव होता तो फिर मैं ऐड करता दोनों को। ये चीज क्लियर है? ओके सर। ये कौन था? But in class 8 we did it like that, like we are gonna just eliminate and just remove 24x, and then we are going to subtract then we are going to like add or subtract 18 and 20 and 150 and 36, and then the answers are going to come. So we are going to divide it and get the value of y. बिल्कुल ऐसी, अभी मैं ऐसी करने वाला हूँ ना, अभी मैं आगे यही करूँगा। अभी पहले देख लो, फिर मुझे बताना। लेकिन इट डजंट मैटर, तुमने क्लास 8 में जैसे सीखा तुम बिल्कुल उससे भी सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। सर आपको 150 minus 36 कैसे मिला? आप दोबारा रिपीट कर प्लीज। 150 minus 36, देखो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई विल सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो 24x minus 18y, दिस इज वन साइड, आई विल सब्ट्रैक्ट इट विद द अदर साइड। दूसरी साइड क्या है? 24x plus 20। अब जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ यही किया तो आई विल आल्सो डू इट विद द राइट हैंड साइड एज वेल। तो दिस इज 150 and this is 36, so I will also subtract 150 and 36, and 150 minus 36 you can use your calculators for that. आप कैलकुलेटर यूज कर लो, बगैर कैलकुलेटर कर लो, you will get 114। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं कि this is 24x, एक 24x हमारे पास पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, तो this will get cancelled out, ये cancelled out हो जाएगा। and what will be minus 18y minus 20y will give me minus 38y। this will be minus 38y, this is minus and minus, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो minus 18y minus 20y will give me minus 38y, and that will be equals to 114। since I have to find the value of y now, what I will do, I will just shift this minus 38 on the other side। ये minus 38 y के साथ multiply हो रहा है, ये subtract नहीं हो रहा है, ये multiply हो रहा है। तो जब यहाँ multiply हो रहा है तो it will go on the other side and it will get divided, ये जाके वहाँ divide हो जाएगा। और जल्दी से कैलकुलेटर से डिवाइड करके मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ 114 डिवाइडेड बाय minus 38। यू विल गेट 3 minus 3। तो द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी -3। ऐसे किया था महा?
जी सर. चलो अब y की वैल्यू आ गई है. I have the value of y. I have to find the value of x. So you have two So now we are equations. going to select one of the equations. Like if we are going to select equation number 1, so in place of y we are going to replace -3. Then it would be like 4x minus 3 and then minus 3 and then it would be turning like 9 plus 9. We are going to multiply it. Very good, very good, very good. You have to select one equation. It's up to you. If you want to select equation 1, it's good. If you want to do it with 2, it will also be good. Both will give the same answer. ऐसा नहीं है 1 से अलग आंसर आएगा, 2 से अलग, दोनों से सेम आंसर आएगा. We are picking equation number 1. Equation number 1 is 4x Minus. and then we have minus and then we have 3 and now we will put the value of y. We will put the value of y in brackets. And what is the value It of is y? The value of minus y is 3. minus 3. So I will just put the value of y in bracket minus 3 and then equals to 25. 25 and then I will solve it to find the value of x. So, but I found elimination more easier to do as compared to substitution. Elimination हाँ ऐसे ही है. Substitution में we have to make equation 3. उसमें कभी कभार mistake हो जाती है ना. वही मैंने जैसे बताया कि if you have to shift this 6 तो ये denominator में चला जाता है. So it is very difficult to solve a equation which has a denominator. फिर उसका LCM लेना पड़ता है. ठीक है. तो क्वेश्चन में आपको हमेशा इसी तरह आएगा कि you have to solve the simultaneous equations either by using elimination or substitution. जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 4x minus 3 multiply by minus 3 will give me, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मींस you have to 9. multiply it. So this will be Plus positive 9 and this will be equals to 25. 25. Positive 9 will be shifted on the other side. This will be Which 4x. is minus 25 minus 9. 25 minus 9 will give me, कितना हो जाएगा 25 minus 9? 16 हो जाएगा. 16. And what will be, ये 4 multiply हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? Divide and the answer would be x is equals to 4. x is equals to 4. अब एक चीज हो गई परेशानी के सर पता नहीं चल रहा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है. हो सकता है हमने इतनी मेहनत की और हमारा आंसर गलत हो गया. तो देयर इज अ मेथड फॉर चेकिंग योर आंसर एज वेल. आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो कि वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है, उसके बारे में भी बता देता हूँ. यू हैव द वैल्यू ऑफ x एज 4 and you have the value of y is -3. तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि whether our answers are correct or wrong. कैसे चेक करेंगे? We will put them back in equation 1 and 2 both. ठीक है, चलो जल्दी से पुट करते हैं. 4 x की वैल्यू क्या है? What is the value of x? 4 minus 3. What is the value of y? -3 equals to 25. Both the sides should be 25. अगर ये आंसर्स, अगर ये वैल्यूज तुम्हारी करेक्ट है तो यहां भी 25 आएगा. 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16. And what about -3 multiplied by -3? That will be +9 equals to 25. So 25 यहां भी आ रहा है और 25 यहां भी आ रहा है. इसका मतलब है कि योर आंसर्स मे बी करेक्ट. अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी मे बी, क्योंकि आपने सिर्फ एक इक्वेशन को टेस्ट किया है. अब आप दूसरी इक्वेशन को भी जल्दी से टेस्ट करो और मुझे बताओ कि क्या इसी तरह आंसर्स आ रहे हैं. जल्दी लेते हैं. 6 है एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4. सो आई विल राइट 4 एंड देन आई हैव अ पॉजिटिव 5 and then the value of y is -3, so I will write -3 in bracket equals to 9. What is 6 times 4? 6 times 4 is 24, so I will write 24 and then 5 multiplied by -3 will be 15 and equals to 9. Again 24 minus 15 gives me 9, so this is again coming out to be true. इसका मतलब है कि मेरे दोनों आंसर्स एकदम करेक्ट हैं क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशंस को टेस्ट भी कर लिया, चेक भी कर लिया. तो दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग योर आंसर एज वेल. अगर आपको लगता है कि आपने इक्वेशंस, आपने जो वैल्यूज निकाली हैं दे आर रॉन्ग, यू कैन चेक इट. अगर इनमें से कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब है योर वैल्यूज आर रॉन्ग. यू हैव टू चेक देम बोथ. ठीक है, हमेशा याद रखना आपको दोनों को चेक करना होता है.
इसको एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, बल्कि तुम लोग ही रिवाइज कराओ मुझे, साथ साथ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस? सबसे पहले मुझे कौन बता रहा है व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस? Solving them both together. बोथ इक्वेशंस, ठीक है, टू इक्वेशंस एट वन टाइम। व्हाई डू वी नीड टू इक्वेशंस? व्हाई डू वी नीड टू इक्वेशंस? Because there are two Sir, variables. to evaluate our answer. Because To we have to evaluate find because we have to find two values of variable. What is the method? The first one is elimination and the second one is substitution. We are picking elimination method. What is the first step in elimination method? First step क्या है elimination method में? To make the coefficients same. You have to pick the variable. You have to pick the variable. First step is you have to pick the variable. What is the second step? Make What the is the second coefficient step? same. You have to make the coefficient same. How will you make the coefficient same? By multiplying the whole equation. By multiplying with the opposite coefficients. By multiplying it with the opposite coefficients. ठीक है? And what is the third step? What is the third step? We have to check if the signs are same or different, and according to that we will add or subtract. Very good. If the signs are different, for example, one is positive and the other one is negative, so you will go for addition. If the signs are same, means both have positive sign or both have negative sign, then you will subtract. In this case, the variable which we pick was x. The sign of 24x and 24x was positive, so the sign is same. That's why we subtract both the equations. Subtract means minus किया, ठीक है। And what is the method of, इसको यहाँ लिख भी देता हूँ subtract ताकि, what is the method of subtraction? Left side, left hand side minus left hand side, right hand side minus right hand side. So 24x minus 18y minus 24x plus 20y, and the other side was 150 minus 36. ब्रैकेट्स को रिमूव किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3. Once you get the value of y, you just put them back in your equation, original equation. Equation 1 में डालो, equation 2 में, you solve it to get the value of the other variable, and once you have find out the value of both the variables, you put it back to check your answer. इसमें कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लो जल्दी से, फिर हम क्लास फिनिश कर लेते हैं। सर अगर हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं इंस्टेड तो आंसर सेम आता। बिल्कुल, आप ऐसी करके देखना। इफ यू आर पिकिंग y, सबसे पहले y को पिक करोगे तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ y इज 5, एंड इक्वेशन नंबर 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3, ठीक है। जब आप इसको पूरी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से करते, कोफिशिएंट सेम हो जाते, देन यू डिसाइड द साइन। साइन दोनों के ऑपोजिट होते हैं, तो फिर आप इन दोनों को ऐड करते, ऐड करने के बाद जब आप वैल्यूज निकालते तो यही दोनों वैल्यूज आती। आप इसको घर में इस तरह ट्राई करके देखना, जब आप y को पिक करोगी तो यही आंसर्स आएंगे। अच्छा सर एक और क्वेश्चन था, आपने 24x को कैंसिल क्यों किया? क्योंकि दिस इज 24x पॉजिटिव एंड दिस इज 24x नेगेटिव। सो जिस तरह 2 - 2 0 होता है ना, अगर मैं 2 - 2 करूंगा तो ये मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0। तो मैं 2 और 2 को कैंसिल कर सकता हूँ ना, तो मैं इनको ऐसे कैंसिल भी करके दिखा सकता हूँ। अगर कभी तुम्हें कैंसिल नहीं करना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव 24x and this is negative 24x, so both will cancel out each other, क्योंकि दोनों का आंसर 0 आ जाएगा। ओके सर, तो आपको 38 कैसे मिला? आपने 38 मुझे, ठीक है, 38 मुझे इस तरह मिला कि this is -18y and this is -20y। तो जिस तरह -2 और -2 कितना होता है, -2 और -2 कितना होता है, -4, बिकॉज 2 नेगेटिव। जैसे अगर -2 और -4 होता तो दिस विल गिव मी एन आंसर ऑफ -6। क्यों ऐड करता मैं, लेकिन साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। तो इसी तरह मैंने -18y को और -20y को ऐड किया बिकॉज दे बोथ आर नेगेटिव। तो माइनस और माइनस ऐड होते हैं एंड साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। तो -18 और -20 विल गिव मी -38y, ठीक है, और इक्वल्स टू 114। ये तो दूसरी साइड पे था। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये -38 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। When it will go on the other side, इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
और जब 114 डिवाइड बाय -38 होगा तो इट विल गिव मी एन आंसर ऑफ -3. तो द वैल्यू ऑफ y इज -3. और कोई क्वेश्चन है? सर आप एक बार और बता देंगे कि ये कैसे पता चलता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड करना है सब्स्टिट्यूशन? सॉरी जरा दो एक और बार बोलो, सुना नहीं मैंने. रिपीट क्या करना है मुझे? सर आप एक और बार बता देंगे कि कौन से मेथड से करना होता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन. इट्स अप टू यू. आपके पास क्वेश्चन में चॉइस होती है, आइदर यू कैन पिक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो यू कैन गो फॉर एलिमिनेशन. इफ यू वांट टू सॉल्व इट विद सब्स्टिट्यूशन, आप उससे भी सॉल्व कर सकती हो, दोनों से आंसर सेम आएगा. Understood, sir. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं स्लाइड दिखा देता हूँ. वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चंस लाइक दिस. एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर मैं इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं और इसका रिवीजन करवा दूंगा बाद में. अभी मैं इस पे और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा फिलहाल. ठीक है, और इफ यू वांट टू सी द वीडियोस, मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियोस शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, ताकि तुम लोग इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो. इसकी वीडियोस काफ़ी मेरे पास बनी हुई है. ठीक है.